welcome to SLD online class 7th standard mathematics. We were in the chapter 4, that is angles and the base of the angle. I had explained you till practice set 19. Today I am going to explain you practice set 20. In this practice set 20 we are going to learn about the vertically opposite angle and the properties of vertically opposite angle. We will learn for the definition what is vertically opposite angle. The angle formed by the opposite rays of the arms of the angle is said to be opposite angle. ऑपोजिट एंगल क्या है? जो एंगल फॉर्म होता है ऑपोजिट रे से, तो उसे हम लोग और दूसरा आर्म फॉर्म होता है उसको हम लोग कहते हैं ऑपोजिट एंगल. और प्रॉपर्टीज ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल फॉर्म्ड व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट आर ऑफ इक्वल measurement. What is properties? In this property we are going to know about the vertically opposite angle that is formed when two lines are intersecting and the measurement of that angle is equal. Vertically opposite angle का property क्या है? जो दो लाइन इंटरसेक्ट होके लाइन दूसरा फॉर्म हो रहा है और दोनों का मेजरमेंट क्या है? इक्वल है. ये हुआ प्रॉपर्टीज ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. तो हम ये डेफिनेशन और ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल दोनों फॉर्म करके हम लोग प्रैक्टिस सेट 20 सॉल्व करेंगे. सी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. फर्स्ट वी विल लर्न द डेफिनेशन. द एंगल formed by the opposite ray of the arms of an angle is said to be its opposite angle. What? The angle formed by the opposite rays of the arms of an angle is said to be opposite angle. For example, see like this. A, P, B and here C, D. See here A, P, B is equal to C, P, B. This both are the opposite angle. They are both opposite angle. One angle is forming another arm. That is the ray is this ray is an opposite angle. The APB is opposite to CPB D. ओके यहाँ पे देखो ये ऑपोजिट एंगल है APB ऑपोजिट है CPD को. ऐसे एंगल जो फॉर्म होता है उसे हम लोग वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कहते हैं. Now the properties of vertically opposite angle. See here, what is that? The vertically opposite angle formed when two lines intersect are of equal measurement. See here, the vertically opposite angle formed when two lines intersect are of equal measure. See here two lines are intersecting. Okay, here A, P, B and C, P, D. Both the line are intersecting. So here this is the measurement of APB. If it is 45 degree, then CPD measurement also will be 45 degree. So this is known as the properties of
द वर्टिकली एंगल इज फॉर्म्ड हियर, यहाँ पे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल फॉर्म्ड हो गया क्योंकि यहाँ दोनों लाइन इंटरसेक्ट हो रहा है ईच अदर को। और जो मेजरमेंट है ए पी बी का, यहाँ पे मेजर सी पी डी का मेजरमेंट भी वही है, सेम मेजरमेंट रहेगा और दोनों इंटरसेक्ट हो रहा है ईच अदर को, तो इसको कहते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। जैसे ऑपोजिट एंगल यहाँ फॉर्म हुआ, फर्स्ट डेफिनेशन में क्या था, अगर दो रे जो है एक दूसरे को फॉर्म हो रहे, ऑपोजिट से फॉर्म हो रहे हैं दो आर्म, तो उसे हम लोग ऑपोजिट एंगल कहेंगे। वैसे यहाँ पे क्या है, दो लाइन इंटरसेक्ट हो रहा है एक दूसरे को, तो और मेजरमेंट इक्वल है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो ये डेफिनेशन हम लोग लेके प्रैक्टिस सेट 20 सॉल्व करेंगे, ये डेफिनेशन यूज करेंगे और प्रैक्टिस सेट 20 सॉल्व करेंगे। नाउ प्रैक्टिस सेट set 20. Our first question, line AC and BD intersect at point P. M A D A P D equals to measurement of angle A P D equals to 47 degree. Find the measure of angle A P B, angle B P C and angle C P D. See here what they have given. They have given the line AC and BD intersect at point P, and they have given the measurement of angle APD equals to 47 degree, and they have given you have to find angle APB and angle BPC and angle CPD. These three angle you have to find. यहाँ पे क्या दिया है, लाइन AC एंड BD इंटरसेक्ट एट पॉइंट P. P के पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहा है एक दूसरा लाइन, और एंगल APD का मेजरमेंट है 47 डिग्री है। और आपको फाइंड आउट करने के लिए तीन एंगल दिया है, वो है APB और BPC और CPD। तीनों एंगल का मेजरमेंट आपको ढूंढना है। तो मेरा यहाँ पे देखो ये है इंटरसेक्ट हो रहा है लाइन, यहाँ पे A P B, यहाँ C, यहाँ पे D। क्लियर, ये मेरा लाइन है AC और BD, ए लाइन है इंटरसेक्ट हो रहा है पॉइंट P के पास। तो यहाँ पे APD इक्वल्स टू 47 डिग्री। यू हैव टू फाइंड APB and BPC and CPD. First we will find this, okay? APB. See here. First question. Angle APB equals to question mark. They have given measurement of angle APD equals to 47 degree. See here children, what they have given. They have given A. See here what? APD, and they had told to find APB. See here, this line BPD, this is a straight line. It is forming a straight line. So it is, and that on that straight line you are getting a one line, that is A. So here you can call it as a linear pair.
द एंगल ऑफ लीनियर पे दिस इज स्ट्रेट लाइन. व्हाट इज द स्ट्रेट लाइन मेजरमेंट? 180 डिग्री. यहाँ पे देखो क्या दिया है, ए पी बी फाइंड आउट करने के लिए दिया है और आपको मेजरमेंट ऑफ ए पी डी का दिया है. तो यहाँ पे आप जब एंगल को कर रहे हो, यहाँ पे लेंथ देखो, यहाँ पे क्या है, ए पी बी और फाइंड आउट करने के लिए डी डी और फाइंड आउट करने के लिए ए पी बी दिया. तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रहा है और स्ट्रेट लाइन के ऊपर आपको एक लाइन मिल रहा है, वो है ए. तो ये स्ट्रेट लाइन देखो, यहाँ पे ए पी डी ये क्या हो गया, लीनियर पेयर हुआ है. सॉरी, बी पी डी ये स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पे लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है. तो ये हम लोग यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, सी हियर ए पी बी प्लस ए पी डी equals to 180 degree, which why it is angle in linear pair. ओके, यहाँ पे फॉर्म हुआ एंगल इन लीनियर पेयर. तो ए पी बी हमें फाइंड आउट करना है, ए पी बी प्लस ए पी डी equals to they have given 47 degree. You will write here 47 degree equals to 180 degree. When the and this 47 degree will go to your right hand side. 47 degree जो है right hand side जाएगा. यहाँ पे देखो ए पी बी equals to 180 degree minus 47 डिग्री. तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा ए पी बी इक्वल्स टू 133 डिग्री. ये है आपका आंसर ए पी बी का. अभी सेकेंड सीयर, यहाँ पे देखो ए पी बी प्लस 47 इक्वल्स टू 180 आएगा. ए पी डी का 47 कहाँ से आया, यहाँ पे ए पी डी दिया गया है, उसलिए 47 डिग्री आएगा. तो यहाँ पे क्या होगा, 47 डिग्री वो राइट हैंड साइड जाएगा, तो प्लस साइन जो है वो माइनस हो जाएगा. तो ए पी बी इक्वल्स टू 180 माइनस 47 डिग्री. उसके बाद आप इसको माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा ए पी बी इक्वल्स टू 133 डिग्री. ऐसा करना. अभी सेकेंड वन, वही क्वेश्चन आपको सेकेंड क्या फाइंड आउट करने के लिए दिया है, एंगल पी बी पी सी आपको फाइंड आउट करना है. तो इसको क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे देखो जो हमारा वो लोग जो दिए थे पॉइंट इंटरसेक्ट, क्या है हमारा ए बी डी सी पी. यहाँ पे क्या है 47 डिग्री. अभी हम लोग फाइंड आउट करें किए, अभी जो हम फाइंड आउट किए ए पी बी फाइंड आउट किए, तो उसका कितना आया आंसर, यहाँ पे 133 डिग्री आया. अभी आपको क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है, बी पी सी. यहाँ देखो बी पी सी, वो बी पी सी क्या है, ए पी डी का ऑपोजिट है, ऐसा ऑपोजिट है ना. यहाँ पे देखो ए पी डी है जो, उसको बी पी सी ऑपोजिट है. और ये क्या हुआ, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. वर्टिकल ऑपोजिट एंगल में क्या था, इंटरसेक्ट द वर्टिकल ऑपोजिट फॉर्म व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट आर इक्वल. हियर सी ए पी डी आर intersecting to B P C and this the measurement is also equal. So here you will write measurement of A P D is equals to measurement of B P C. Why? Because of vertically opposite angle. So therefore measurement of B P C equals to 47 डिग्री. यहाँ पे अभी थर्ड क्वेश्चन आपको क्या फाइंड आउट करना है, सी पी डी. थर्ड वन में सी पी डी फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या अभी आप लोग फाइंड आउट किए बी पी सी, तो उसका 45 डिग्री है. यहाँ पे देखो डी पी सी और सी पी डी इज वर्टिकली ऑपोजिट टू द एंगल ए पी बी. यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है ना एक दूसरे को, तो ये ऑपोजिट है, सी पी डी ऑपोजिट है ए पी बी को. या ओके,
So you will write here measurement of angle APB is equals to measurement of angle CPD. Why? This is because of vertically opposite angle. So here you will write, therefore measurement of CPD equals to 133 degree. So here you will write here 133 degree. यहाँ पे क्यों आया आपको ये? क्योंकि यहाँ जो हम लोग फाइंड आउट किए थे फर्स्ट क्वेश्चन APB वो ऑपोजिट है वर्टिकली CPD को, तो 133 डिग्री ही आएगा. सो देयरफॉर यू विल राइट हियर आंसर measurement of angle APB equals to 133 degree and measurement of angle BPC equals to 47 degree and measurement of angle CPD equals to 133 degree. Now we will go to the second main. Now second main. Lines PQ and RS intersect at point M and measurement of PMR equals to x degree. What are the measures of angle PMS, angle SMQ and angle QMR? Same method you are going to use in this also. Our first, see, we will draw the first opposite angle of the linear pair. See what they are given, PMR, and this PMR is x degree. Here they are given SMQ. First they have given the line PQ and RS. It is intersecting to the point M. यहाँ पे क्या दिया गया, PQ और RS वो इंटरसेक्ट हो रहा है लाइन M के पास. तो ये क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो रहा है, क्योंकि यहाँ देखो PMR जो है ये PR का ऑपोजिट है, तो सेम रहेगा. तो हम पहले हमें क्या क्वेश्चन दिया है, फाइंड एंगल PMS. ओके, PMS फाइंड आउट करने के लिए दिया गया है. तो गिवन एंगल क्या है, गिवन क्या है, मेजरमेंट ऑफ एंगल PMR इक्वल्स टू x डिग्री. तो ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसा दिया गया है हमारा लाइन RMS और ये P है, तो यहाँ पे दिया गया x डिग्री. ओके, यहाँ क्या हो गया, लीनियर पेयर आ रहा है ना, तो क्यों लीनियर पेयर, क्यों, यहाँ पे एक लाइन दिया गया, वो लाइन के स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक लाइन फॉर्म हुआ है, तो एंगल फॉर्म हो रहा है वहाँ पे PMR करके. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, PMR x डिग्री है, तो इसको हमें क्या करेंगे, एंगल PMS इज इक्वल्स टू एंगल PMR equals to 180 degree. Why? Because this is because of angle, sorry, here we will write plus, because angle in linear pair. ये एंगल जो है लीनियर PMS प्लस PMR इक्वल्स टू 180 डिग्री. क्यों, ये एंगल जो है लीनियर पेयर में आ रहा है इसीलिए. तो यहाँ पे PMS प्लस PMR क्या है, x डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री. देयरफॉर PMS इक्वल्स टू दिस x will go to our right hand side, 180 डिग्री माइनस x डिग्री. देयरफॉर PMS इक्वल्स टू 180 माइनस x डिग्री. ये हमारा आंसर है PMS का. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड आउट करना है. SMQ.
एस एम क्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमारा एंगल क्या है, पी एक्स एम एस आर क्यू। अभी हम लोग क्या फाइंड आउट किए, जस्ट नाउ वी फाइंड आउट पी एम एस। तो सो आवर पी एम एस इज 180 डिग्री माइनस एक्स डिग्री। ओके, so then they had told you to find SMQ. SM is Q is opposite to PMR. यहाँ पे देखो SMQ जो है PMR को ऑपोजिट हो रहा है, तो यहाँ पे लिखोगे आप लोग एंगल SMQ is equals to angle PMR. Why? Because of vertically opposite angle, because of vertically opposite angle. So here you will write directly the measurement, therefore measurement of angle SMQ equals to x degree. यहाँ पे इक्वल हो रहा है ना, PMR और SMQ इक्वल हो रहा है क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल में क्या दिया है, जब एक एंगल एक दूसरे को, दो एंगल एक दूसरे के इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो उनका मेजरमेंट जो रहेगा इक्वल रहेगा, तो यहाँ पे मेजरमेंट इक्वल आया। अभी थर्ड क्वेश्चन, फाइंड एंगल PQMR. See here, just now we find out SMQ. SMQ क्या है, x डिग्री है। तो यहाँ पे देखो अभी फाइंड आउट करने के लिए क्या दिया है, QMR। तो QMR PMS को ऑपोजिट है, वर्टिकली ऑपोजिट आ रहा है, तो क्या यहाँ पे भी क्या आएगा, 180 डिग्री माइनस x डिग्री ही आएगा क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो रहा है। तो यहाँ पे आप लिखोगे QMR is equals to angle PMS because of vertically opposite angle. So here you will write therefore measurement of QMR equals to 180 minus x degree. Okay, so यहाँ पे आप आंसर लिखोगे measurement of angle PMS equals to 180 minus x degree. Measurement of SMQ equals to x degree. Measurement of angle QMR equals to 180 minus x degree. So here I finish my practice set 20. In my next video I am going to explain you practice set 21.